ایک شخص نے اپنا ایک غلام آزاد کیا، لیکن اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہ تھا، اس لیے نبی کریم نے اسے اس کا غلام واپس کرا دیا اور اسے نعیم بن نہام نے خرید لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2415۔ نبی کریم کی راستے میں ایک کھجور پر نظر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا ڈر نہ ہوتا کہ صدقہ کی ہے تو میں خود اسے کھا لیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2431۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان کے بدن کے 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر ہر اس دن کا صدقہ واجب ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2707۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے۔ اس کی روایت عبداللہ بن جعفر مخرم اور عبدالواحد بن ابی اور نساد بن ابراہیم سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2697۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر میں مدینہ میں ہرن چرتے ہوئے دیکھوں تو انہیں کبھی نہ چھیڑوں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مدینہ کی زمین دونوں پتھریلے میدانوں کے بیچ میں حرم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1873۔ رسول کریم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہی اس کی مدد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2444۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ 5 جانور ایسے ہیں جنہیں مارنے میں کوئی گناہ نہیں، کوا، چیل، چوہا، بچھو اور کاٹ کھانے والا کتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1828۔ رسول کریم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایک عمارت کے حکم میں ہے کہ ایک کو دوسرے سے قوت پہنچتی ہے، اور آپ نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2446۔ نبی کریم نے اپنی وفات کے بعد اپنے ہتھیار، ایک سفید خچر اور ایک زمین جسے آپ خود صدقہ کر گئے تھے کے سوا اور کوئی ترکہ نہیں چھوڑا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3098۔ نبی کریم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2026۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز میں شبہ پیدا کر دیتا ہے، پھر اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھ۔ تم میں سے جب کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1232۔ نبی کریم اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے کہ اب کے قدم آئے کہا کہ پنڈلیوں پر ورم آ جاتا۔ جب اب سے اس کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا تو فرماتے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1130۔ قبا کے لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک نے دوسرے پر پتھر پھینکے۔ حضرت کو جب اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا، چلو ہم ان میں صلح کرائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2693۔ نبی کریم جب نماز پڑھتے تو اپنے بازوؤں کے درمیان اس قدر کشادگی کر دیتے کہ دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی تھی، اور لیس نے یوں کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 390۔ رسول اللہ نے فرمایا، گروی جانور پر اس کے خرچ کے بدل سواری کی جائے۔ اسی طرح دودھ والے جانور کا جب وہ گروی ہو تو خرچ کے بدل اس کا دودھ پیا جائے، اور جو کوئی سواری کرے دودھ پہ وہی اس کا خرچ اٹھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2512۔ رسول کریم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ گمان بدزنی سب سے جھوٹی بات ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کی برائی کی تلاش میں نہ لگے رہو، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، اور نہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرو، بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6724۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کی بنا سب سے پہلے اسی نے قائم کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3335۔
नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स तकब्बुर की वजह से तहमत घसीटता हुआ चलेगा तो अल्लाह पाक उसकी तरफ क़यामत के दिन नजर भी नहीं करेगा। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मेरे तहमत का एक हिस्सा कभी लटक जाता है मगर ये कि खास तौर से इसका ख्याल रखा करूं। आपने फरमाया, तुम उन लोगों में से नहीं हो जो ऐसा तकब्बुर से करते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 5784। नबी करीम ने फरमाया, मैंने रात में 2 आदमी देखे जो मेरे पास आए, फिर वो मुझे लेकर एक दरख्त पर चढ़े और उसके बाद मुझे एक ऐसे मकान में ले गए जो निहायत खूबसूरत और बड़ा पाकीज़ा था। ऐसा खूबसूरत मकान मैंने कभी नहीं देखा था। इन दोनों ने कहा कि ये घर शहीदों का है। सही बुखारी हदीस नंबर 2791। नबी करीम ने फरमाया, मैंने रात में 2 आदमी देखे जो मेरे पास आए, फिर वो मुझे लेकर एक दरख्त पर चढ़े और उसके बाद मुझे एक ऐसे मकान में ले गए जो निहायत खूबसूरत और बड़ा पाकीज़ा था। ऐसा खूबसूरत मकान मैंने कभी नहीं देखा था। इन दोनों ने कहा कि ये घर शहीदों का है। सही बुखारी हदीस नंबर 2791। साद बिन अबादे रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल अल्लाह से मसला पूछा। उन्होंने अर्ज किया कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया है और उसके ज़िम्मा एक नज़र थी। अपने फरमाया कि उनकी तरफ से नज़र पूरी कर दे। सही बुखारी हदीस नंबर 2761। रसूलुल्लाह जब असर की नमाज पढ़ते तो धूप अभी उनके हुजरे में बाकी रहती थी। सही बुखारी हदीस नंबर 3103। नबी करीम की खिदमत में खाना लाया गया। अब के साथ अब के रबीब उमर बिन इब्बी सल्लमा रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। हज़रत ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ और अपने सामने से खा। सही बुखारी हदीस नंबर 5378। रसूल अल्लाह ने हर इस चीज में शफा का हक दिया था जो अभी तकसीम न हुई हो, लेकिन जब हुदूद मुकर्रर हो गईं और रास्ते बदल दिए गए तो फिर हक शफा बाकी नहीं रहता। सही बुखारी हदीस नंबर 2257। रसूल अल्लाह ने हर इस चीज में शफा का हक दिया था जो अभी तकसीम न हुई हो, लेकिन जब हुदूद मुकर्रर हो गई और रास्ते बदल दिए गए तो फिर हक शफा बाकी नहीं रहता। सही बुखारी हदीस नंबर 2257। नबी करीम ने फरमाया, अगर अपनी उम्मत के किसी फर्द को अपना जानी दोस्त बना सकता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन वो मेरे दीनी भाई और मेरे दोस्त हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 3656। नबी करीम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्न आदम ने मुझे गाली दी और उसके लिए मुनासिब न था कि वो मुझे गाली देता। इसने मुझे झुटलाया और उसके लिए भी मुनासिब न था। इसकी गाली यह है कि वो कहता है मेरा बेटा है, और उसका झुटलाना यह है कि वो कहता है कि जिस तरह अल्लाह ने मुझे पहली बार पैदा किया, दोबारा मौत के बाद वो मुझे जिंदा नहीं कर सकेगा। सही बुखारी हदीस नंबर 3193। आप फरमा रहे थे कि रूहों के झुंड अलग अलग थे। फिर वहां जिन रूहों में आपस में पहचान थी उनमें यहां भी मोहब्बत होती है, और जो वहां गैर थी यहां भी वो खिलाफ रहती हैं। और यहया बिन अयूब ने भी इस हदीस को रवायत किया। कहा, मुझसे यहया बिन सईद ने बयान किया। आखिर तक। सही बुखारी 3336। नबी करीम ने फरमाया, अगर अपनी उम्मत के किसी फर्द को अपना जानी दोस्त बना सकता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन वो मेरे दीनी भाई और मेरे दोस्त हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 3656। नबी करीम ने फरमाया, बेवाओं और मिस्कीनों के काम आने वाला अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले के बराबर है, रात भर इबादत और दिन को रोजे रखने वाले के बराबर है। सही बुखारी 5353। नबी करीम ने फरमाया कि हर नबी को ऐसे ऐसे मौजिज़ात अता किए गए कि उन्हें देखकर लोग उन पर ईमान लाए। बाद के ज़माने में उनका कोई असर नहीं रहा, और मुझे जो मौजिज़ा दिया गया है वो वही कुरान है जो अल्लाह ताला ने मुझ पर नाजिल की है। इसका असर क़यामत तक बाकी रहेगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन मेरे ताबे फरमान लोग दूसरे पैगंबरों के ताबे फरमानों से ज्यादा होंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 4981। नबी करीम ने फरमाया, जिसने नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर ली इसने अपनी ज़ात के लिए जानवर ज़बह किया, और जिसने नमाज ईद के बाद कुर्बानी की इसकी कुर्बानी पूरी हुई। उसने मुसलमानों की सुन्नत को पा लिया। सही बुखारी 5546। नबी करीम ने माज रज़ी अल्लाह अन्हु को जब आमिल बनाकर यमन भेजा तो आपने उन्हें हिदायत फरमाई कि मजलूम की बद्दुआ से डरते रहना कि इसके और अल्लाह ताला के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। सही बुखारी 2448। रसूल अल्लाह ने ज़ोहर में 5 रकत पढ़ लें।
اس لیے اب سے پوچھا گیا کہ کیا نماز کی رکعتیں زیادہ ہو گئی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ کہنے والے نے کہا کہ اپنے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس پر اپنے سلام کے بعد 2 سجدے کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1226۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے وارث میرے بعد 1 دینار بھی نہ بانٹے، میرا ترکہ تقسیم نہ کریں، میں جو چھوڑ جاؤں اس میں سے میرے عاملوں کی تنخواہ اور میری بیویوں کا خرچ نکال کر باقی سب صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3096۔ رسول اللہ نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1898۔ نبی کریم نے فرمایا کہ گرمی کے موسم میں ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 538۔ جب رسول اللہ کے زمانہ میں سورج گرہن لگا تو یہ اعلان کیا گیا کہ نماز ہونے والی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1045۔ آپ نے فرمایا عورت 3 دن کا سفر اس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم رشتہ دار نہ ہو۔ اس روایت کی مطابقت احمد نے ابن مبارک سے کی، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع نے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم کے حوالہ سے۔ صحیح بخاری 1087۔ نبی کریم نے فرمایا نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا اور عورتوں کو ہاتھ پر ہاتھ مار کر یعنی تالی بجا کر امام کو اطلاع دینی چاہیے۔ صحیح بخاری 1203۔ نبی کریم نے سورۃ النجم میں سجدہ کیا تو مسلمانوں، مشرکوں اور جن و انس سب نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ اس حدیث کی روایت ابراہیم بن طہمان نے بھی ایوب سختیانی سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1071۔ رسول اللہ نے فرمایا میں تو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتا ہوں اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ صحیح بخاری 254۔ رسول اللہ نے سورج گرہن کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ موسیٰ کے ساتھ اس حدیث کو علی بن مدینی نے بھی عبدالعزیز دراوردی سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے حشام سے۔ صحیح بخاری 2519۔ رسول اللہ نے فرمایا جب اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوحی محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غصہ پر غالب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3194۔ رسول اللہ نے فرمایا جب اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوحی محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غصہ پر غالب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3194۔ نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن ہر دغا باز کے لیے جھنڈا ہوگا، ان میں سے ایک صاحب نے بیان کیا کہ وہ جھنڈا اس کے پیچھے گاڑ دیا جائے گا، اور دوسرے صاحب نے بیان کیا کہ اسے قیامت کے دن سب دیکھیں گے، اس کے ذریعہ اسے پہچانا جائے گا۔ صحیح بخاری 3186۔ نبی کریم نے فرمایا ایمان کی نشانی انصار سے محبت رکھنا ہے اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے۔ صحیح بخاری 3784۔ ایک عورت نبی کریم کی خدمت میں آئی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ پھر آئیو۔ اس نے کہا اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو؟ گویا وہ وفات کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے نہ پا سکو تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلی آنا۔ صحیح بخاری 3659۔ نبی کریم نے فرمایا جس نے کسی کی زمین میں سے کچھ ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ صحیح بخاری 3196۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز میں 2 رکعت فرض کی تھی، سفر میں بھی اور اقامت کی حالت میں بھی۔ پھر سفر کی نماز تو اپنی اصلی حالت پر باقی رکھی گئی اور حالت اقامت کی نمازوں میں زیادتی کر دی گئی۔ صحیح بخاری 350۔ ایک مرتبہ پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ شریف کون ہے؟ حضرت نے فرمایا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارا سوال اس کے بارے میں نہیں ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر نسب کی روح سے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ شریف تھے۔ صحیح بخاری 3490۔ لیکن جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے گواہی دی کہ رسول اللہ نے ہجر کے پارسیوں سے جزیہ لیا تھا تو وہ بھی لینے لگے تھے۔ صحیح بخاری 3157۔ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اس لیے جس نے اسے ناحق ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ صحیح بخاری 3714۔
جب نبی کریم ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر احد پہاڑ پر چڑھے تو احد کانپ اٹھا۔ حضرت نے فرمایا، احد قرار پکڑ کے تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ صحیح بخاری 3675۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عملہ زبان پر نہ لائیں۔ صحیح بخاری 2528۔ رسول اللہ نے فرمایا، بچے ہوئے پانی سے کسی کو اس لیے نہ روکا جائے کہ اس طرح جو ضرورت سے زیادہ گھاس ہو وہ بھی رکی رہے۔ صحیح بخاری 2353۔ نبی کریم نے فرمایا، جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ کر دے گا۔ صحیح بخاری 2387۔ نبی کریم نے فرمایا، جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ کر دے گا۔ صحیح بخاری 2387۔ نبی کریم نے فرمایا، جس نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی راہ سے سونگھی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری 3166۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا کھجور کا باغ بیچا جس کی پیوند کاری ہو چکی تھی تو اس کا پھل اس سال کے بیچنے والے ہی کا ہوگا، ہاں اگر خریدار شرط لگا دے تو پھل سمیت بے سمجھی جائے گی۔ صحیح بخاری 2716۔ نبی کریم نے فرمایا، کتاب اللہ کا حکم قصاص کا ہے۔ صحیح بخاری 4499۔ رسول اللہ نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا۔ صحیح بخاری 5086۔ نبی کریم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ صحیح بخاری 5641۔ نبی کریم کی خدمت میں کھانا لایا گیا، اب کے ساتھ اب کے ربیب عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ اور اپنے سامنے سے کھا۔ صحیح بخاری 5378۔ رسول اللہ نے فرمایا، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ کو پہلے عرب کے ایک ہی محاورے پر قرآن پڑھایا۔ میں نے ان سے کہا اس میں بہت سختی ہوگی، میں برابر ان سے کہتا رہا کہ اور محاوروں میں بھی پڑھنے کی اجازت دو، یہاں تک کہ 7 محاوروں کی اجازت ملی۔ صحیح بخاری 4991۔ نبی کریم نے فرمایا کہ ہر نبی نے کچھ چیزیں مانگیں، یا فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی جس چیز کی اس نے دعا مانگی پھر اسے قبول کیا گیا، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری 6305۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنا کپڑا تکبر و غرور کے سبب سے زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے۔ صحیح بخاری 5783۔ عاشورہ کا روزہ رمضان کے روزوں کے حکم سے پہلے رکھا جاتا تھا، پھر جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ صحیح بخاری 4502۔ نبی کریم نے فرمایا، جس نے ایسا کتا پالا جو نہ مویشی کی حفاظت کے لیے ہے اور نہ شکار کرنے کے لیے، تو روزانہ اس کی نیکیوں میں سے 2 قیرات کی کمی ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری 5480۔ نبی کریم نے فرمایا کہ کھاؤ، یعنی ایسے جانور کو جسے ایسی دھاردار چیز سے ذبح کیا گیا ہو جو خون بہا دے، سوا دانت اور ناخن کے، یعنی ان سے ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ صحیح بخاری 5506۔ نبی کریم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ صحیح بخاری 5353۔ نبی کریم نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، پچنا لگوانے میں، شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ صحیح بخاری 5681۔ رسول اللہ قربانی ذبح اور نہر عیدگاہ میں کیا کرتے تھے؟ صحیح بخاری 5552۔ نبی کریم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری،
रंजो मलाल, तकलीफ और गम में मुब्तला हो जाता है, यहाँ तक कि अगर उसे कोई कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह ताला इसे इसके गुनाहों का कफारा बना देता है। सही बुखारी 5642। नबी करीम ने जिंगे खैबर के मौके पर पालतू गधों के गोश्त की मुमानियत कर दी थी। सही बुखारी 5521। नबी करीम ने एक मर्तबा रोजा की हालत में पुछना लगवाया। सही बुखारी 5694। नबी करीम ने फरमाया, तहमद का जो हिस्सा टखनों से नीचे लटका हो वो जहन्नम में होगा। सही बुखारी 5787। एक साहिब ने खड़े होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एहराम बांधने के बाद हमें किस चीज के पहनने का हुक्म है? फरमाया कि कमीज ना पहनो, ना पाजामे, ना अम्मामे, ना बरनस और ना मोजे पहनो। अलबत्ता अगर किसी के पास चप्पल ना हो तो वो चमड़े के ऐसे मोजे पहने जो टखनों से नीचे हों, और कोई ऐसा कपड़ा ना पहनो जिसमें जाफरान और वर्स लगा हुआ हो। सही बुखारी 5805। एक सहाबी ने नबी करीम से पूछा, क्या मैं भी जिहाद में शरीक हो जाऊं? हज़रत ने दरियाफ्त फरमाया, तुम्हारे माँ बाप मौजूद हैं? उन्होंने कहा कि जी हाँ मौजूद हैं। हज़रत ने फरमाया कि फिर उन्हें में जिहाद करो। सही बुखारी 5972। रसूल अल्लाह ने फरमाया, यकीनन सबसे बड़े गुनाहों में से ये है कि कोई शख्स अपने वालिदैन पर लानत भेजे। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, कोई शख्स अपने ही वालिदैन पर कैसे लानत भेजेगा? हज़रत ने फरमाया कि वो शख्स दूसरे के बाप को बुरा भला कहेगा तो दूसरा भी इसके बाप को और उसकी माँ को बुरा भला कहेगा। सही बुखारी 5973। नबी करीम ने फरमाया कि कत्ल रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 5984। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसे पसंद है कि उसकी रोजी में फराखी हो और उसकी उम्र दराज की जाए तो वो सिला रहमी किया करे। सही बुखारी 5985। रसूल अल्लाह ने फरमाया, बेहतरीन खैरात वो है जिसे देने पर आदमी मालदार ही रहे, और इब्तिदा उनसे करो जो तुम्हारी निगरानी में है, जिनके खुलाने पहनाने के तुम जिम्मेदार। सही बुखारी 5356। नबी करीम ने फरमाया, छोटा बड़े को सलाम करे, गुजरने वाला बैठने वाले को सलाम करे, और छोटी जमात बड़ी जमात को पहले सलाम करे। सही बुखारी 6231। रसूल अल्लाह ने फरमाया, सवार पैदल चलने वाले को सलाम करे, पैदल चलने वाला बैठे हुए को, और कम तादाद वाले बड़ी तादाद वालों को। सही बुखारी 6232। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की कसम में दिन में 70 मरतबा से ज्यादा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार और उससे तौबा करता हूं। सही बुखारी 6307। नबी करीम ने चंद खुतूत खींचे और फरमाया कि ये उम्मीद है और ये मौत है। इंसान इसी हालत उम्मीदों तक पहुंचने की में रहता है कि करीब वाला खत मौत इस तक पहुंच जाता है। सही बुखारी 6418। रसूलुल्लाह जब किसी को सलाम करते और जवाब ना मिलता तो 3 मरतबा सलाम करते थे, और जब आप कोई बात फरमाते तो ज्यादा से ज्यादा 3 मरतबा इसे दोहराते। सही बुखारी 6244। रसूल अल्लाह को किस तरह का कपड़ा ज्यादा पसंद था बयान किया कि हुबरह की सब्ज यमनी चादर। सही बुखारी 5812। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की कसम में दिन में 70 मरतबा से ज्यादा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार और उससे तौबा करता हूं। सही बुखारी 6307। रसूल अल्लाह ने फरमाया था, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से तुम में से इस शख्स से भी ज्यादा खुश होता है जिसका ऊंट मायूसी के बाद अचानक इसे मिल गया हो, हालांकि वो एक चटल मैदान में गुम हुआ था। सही बुखारी 6309। जब रसूल अल्लाह लेटते तो अपने हाथों पर फूंकते और मौज़त पढ़ते और दोनों हाथ अपने जिस्म पर फेरते। सही बुखारी 6319। जब रसूल अल्लाह लेटते तो अपने हाथों पर फूंकते और मौज़त पढ़ते और दोनों हाथ अपने जिस्म पर फेरते। सही बुखारी 6319। नबी करीम रात में तहज्जुद की 11 रकात पढ़ते थे, फिर जब फजर तुलू हो जाती तो 2 हल्की रकात सूंद फजर पढ़ते। इसके बाद अब दाएं पहलू लेट जाते, आखिर मुअज्जिन आता और हज़रत को इत्तला देता तो अब फजर की नमाज पढ़ाते। सही बुखारी 6310। अपने फरमाया कि रहम रिश्तेदारी रहमान से मिली हुई शाख है, जो शख्स इससे मिले मैं इससे मिलता हूँ
और जो इससे कतन ताल्लुक करे मैं इससे कतन ताल्लुक करता हूँ। सही बुखारी 5989। रसूल अल्लाह ने फरमाया, तेरे आयशा, ये जिब्रील हैं, तुम्हें सलाम कहते हैं। बयान किया कि मैंने अर्ज किया, वाले अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अब देखते हैं जो हम नहीं देख सकते। उम्मुल मोमिनीन का इशारा आ हजरत की तरफ था। सही बुखारी 6249। नबी करीम की खिदमत में अगर कोई शख्स सदका लाता तो आ हजरत फरमाते कि ए अल्लाह, फुला की अल औलाद पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा। मेरे वालिद सदका लाए तो आ हजरत ने फरमाया कि ए अल्लाह, इब्बी ओफी की अल औलाद पर रहमतें नाजिल फरमा। सही बुखारी 6332। नबी करीम जब रात में बिस्तर पर लेटते तो अपना हाथ अपने रुखसार के नीचे रखते और ये कहते, ए अल्लाह, तेरे नाम के साथ मरता हूँ और जिंदा होता हूँ। और जब अब बेदार होते तो कहते, तमाम तारीफें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें जिंदा किया इसके बाद के हमें मौत मुराद नींद है दे दी थी और तेरी ही तरफ जाना है। सही बुखारी 6314। नबी करीम जब बैत अल-खला जाते तो ये दुआ पढ़ते, ए अल्लाह, मैं खबीस जिन्नों और जननूहे की बुराई से तेरी पनाह मांगता हूँ। सही बुखारी 6322। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि हमारा रब तबारक व तआला हर रात दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाता है, इस वक्त जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करता है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगता है कि मैं उसे दूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करता है कि मैं उसकी बख्शिश करूं? सही बुखारी 6321। जब रसूल अल्लाह रात में अपनी ख्वाबगाह पर जाते तो कहते, ए अल्लाह, मैं तेरे ही नाम से मरता हूँ और तेरे ही नाम से जिंदा होता हूँ। और जब बेदार होते तो फरमाते, तमाम तारीफें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत के बाद जिंदगी बख्शी और इसी की तरफ हमको जाना। सही बुखारी 6325। रसूल करीम ने एक सहाबी को मस्जिद में कुरान पढ़ते सुना तो फरमाया, अल्लाह इस पर रहम फरमाए, उसने मुझे फुला फुला आयतें याद दिला दे जो मैं फुला फुला सूरतों से भूल गया था। सही बुखारी 6335। रसूल करीम ने कोई चीज तकसीम फरमाई तो एक शख्स बोला कि ये ऐसी तकसीम है कि इससे अल्लाह की रजा मकसूद नहीं है। मैंने नबी करीम को उसकी खबर दी तो आप इस पर गुस्सा हुए और मैंने खफगी के आसार आपके चेहरा मुबारक पर देखे और अपने फरमाया कि अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए, उन्हें इससे भी ज्यादा तकलीफ दी गई लेकिन उन्होंने सब्र किया। सही बुखारी 6336। दुआ के बारे में नाजिल हुई कि ना बहुत जोर जोर से और ना बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बल्कि दरमियानी रास्ता इख्तियार करो। सही बुखारी 6327। रसूल करीम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स इस तरह ना कहे कि अल्लाह, अगर तू चाहे तो मुझे मुआफ कर दे, मेरी मगफरत कर दे, बल्कि यकीन के साथ दुआ करे क्योंकि अल्लाह पर कोई जबरदस्ती करने वाला नहीं है। सही बुखारी 6339। रसूल अल्लाह ने फरमाया, बंदा की दुआ कबूल होती है जब तक कि वो जल्दी ना करे कि कहने लगे कि मैंने दुआ की थी और मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। सही बुखारी 6340। रसूल करीम इस ईदगाह में इस्तिस्का की दुआ के लिए निकले और बारिश की दुआ की, फिर अब क़िबला रुख हो गए और अपनी चादर को पलटा। सही बुखारी 6343। मेरी वालिदा सलीम ने कहा, का रसूल अल्लाह, अनस रज़ी अल्लाह अन्हु आपका खादिम है, इसके लिए दुआ फरमा दे। हजरत ने दुआ की कि ए अल्लाह, इसके मालो औलाद को ज्यादा कर और जो कुछ तूने इसे दिया है इसमें बरकत अता फरमा। सही बुखारी 6344। नबी करीम परेशानी के वक्त ये दुआ करते थे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो बहुत अजमत वाला है और बुर्दबार है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो आसमानों और जमीन का रब और बड़े भारी अर्श का रब है। सही बुखारी 6345। रसूल करीम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स किसी तकलीफ की वजह से जो उसे होने लगी हो मौत की तमन्ना ना करे। अगर मौत की तमन्ना जरूरी ही हो जाए तो ये कहे कि ए अल्लाह, जब तक मेरे लिए जिंदगी बेहतर है मुझे जिंदा रखियो और जब मेरे लिए मौत बेहतर हो तो मुझे उठा लीजियो। सही बुखारी 6351। जब रसूल अल्लाह के पास कोई शख्स अपनी ज़कात लेकर आता तो आप फरमाते कि अल्लाह,
इस पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। मेरे वालिद भी अपनी ज़कात लेकर आए तो हज़रत ने फरमाया कि ए अल्लाह, या अल-बी ओफी पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। सही बुखारी 6359। नबी करीम कहते थे, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ गम व अलम से, आजिज़ी से, सस्ती, बुज़दिली, बुख़्ल, कर्ज चढ़ जाने और लोगों के गलबा से। सही बुखारी 6369। नबी करीम कहा करते थे कि हे अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ आजिज़ी से, सस्ती से, बुज़दिली से और बहुत ज्यादा बुढ़ापे से, और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ अज़ाब कब्र से, और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ जिंदगी और मौत की आजमाइशों से। सही बुखारी 6367। नबी करीम पनाह मांगा करते थे कि ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ दोज़ख की आजमाइश से, दोज़ख के अजाब से, और तेरी पनाह मांगता हूँ कब्र की आजमाइश से, और तेरी पनाह मांगता हूँ कब्र के अजाब से, और तेरी पनाह मांगता हूँ मालदारी की आजमाइश से, और तेरी पनाह मांगता हूँ मसीह दज्जाल की आजमाइश से। सही बुखारी 6376। रसूल अल्लाह पनाह मांगते थे और कहते थे कि हे अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ सस्ती से, और तेरी पनाह मांगता हूँ बुज़दिली से, और तेरी पनाह मांगता हूँ नाकारा बुढ़ापे से, और तेरी पनाह मांगता हूँ बुख़्ल से। सही बुखारी 6371। नबी करीम ने पानी मांगा, फिर अपने वुज़ू किया, फिर हाथ उठाकर ये दुआ की, ए अल्लाह, उबैद अबू आमिर की मग़फ़िरत फरमा। मैंने इस वक्त हज़रत की बगल की सफ़ेदी देखी। फिर अपने दुआ की, हे अल्लाह, क़यामत के दिन इसे अपनी बहुत सी इंसानी मखलूक से बुलंद मर्तबा अता फरमाओ। सही बुखारी 6383। नबी करीम ने अब्दुर्रहमान बिन उफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु पर जर्दी का असर देखा तो फरमाया ये किया है। कहा कि मैंने एक औरत से एक गुठली के बराबर सोने पर शादी की है। हज़रत ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हें बरकत अता फरमाए, वलीमा कर, चाहे एक बकरी का ही हो। सही बुखारी 6386। नबी करीम की अक्सर ये दुआ हुआ करती थी कि अल्लाह, हमें दुनिया में भलाई हसन अता कर और आखिरत में भलाई अता कर, और हमें दोज़ख से बचा। सही बुखारी 6389। रसूल अल्लाह हमें ये कलिमात इस तरह सिखाते थे जैसे लिखना सिखाते थे। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ बुख़्ल से, और तेरी पनाह मांगता हूँ बुज़दिली से, और तेरी पनाह मांगता हूँ नाकारा उम्र से, और तेरी पनाह मांगता हूँ दुनिया की आजमाइश से और कब्र के अजाब से। सही बुखारी 6390। रसूल अल्लाह ने अहज़ाब के लिए बद्दुआ की, वे अल्लाह, किताब के नाजिल करने वाले, हिसाब जल्दी लेने वाले, अहज़ाब को मुशरिकीन की जमातों को ग़ज़वा अहज़ाब में शिकस्त दे, उन्हें शिकस्त दे दे और उन्हें झंझोड़ दे। सही बुखारी 6392। नबी करीम ने फरमाया, जब पढ़ने वाला आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि इस वक्त मलाइका भी आमीन कहते हैं, और जिसकी आमीन मलाइका की आमीन के साथ होती है इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी 6402। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसने सुबहान अल्लाह व बिहम्दे व दिन में 100 मरतबा कहा, इसके गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं, खास समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। सही बुखारी 6405। नबी करीम ने फरमाया, दो कलिमे जो ज़बान पर हल्के हैं, तराजू में बहुत भारी और रहमान को अजीज हैं, सुबहान अल्लाह अल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दा। सही बुखारी 6406। नबी करीम ने फरमाया, इस शख्स की मिसाल जो अपने रब को याद करता है, और उसकी मिसाल जो अपने रब को याद नहीं करता जिंदा और मुर्दा जैसी है। सही बुखारी 6407। अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, एक कम 100, जो शख्स भी उन्हें याद कर लेगा जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताक है और ताक को पसंद करता है। सही बुखारी 6410। नबी करीम ने फरमाया, हे अल्लाह, आखिरत की जिंदगी के सिवा और कोई जिंदगी नहीं, बस तो अंसार और मुहाजिरीन में सलाह को बाकी रख। सही बुखारी 6413। रसूल अल्लाह सब लोगों से ज्यादा जवाद सखी थे, और रमजान में दूसरे औकात के मुकाबला में जब जिब्रील अब से मिलते बहुत ही ज्यादा जूद व करम फरमाते। जिब्रील अलैहिस्सलाम रमजान की हर रात में अब से मुलाकात करते और आपके साथ कुरान का दौरा करते। गरज हजरत लोगों को भलाई पहुंचाने में बारिश लाने वाली हुआ से भी ज्यादा जूद व करम फरमाया करते थे। सही बुखारी 6। मैंने रसूल अल्लाह से सुना, हजरत ने फरमाया कि बूढ़े इंसान का दिल दो चीजों के बारे में हमेशा जवान रहता है, दुनिया की मोहब्बत और जिंदगी की लंबी उम्मीद। सही बुखारी 6420।
रसूल अल्लाह ने फरमाया कि इंसान की उम्र बढ़ती जाती है और उसके साथ दो चीजें इसके अंदर बढ़ती जाती हैं, माल की मोहब्बत और उम्र की दराजी। सही बुखारी 6421। हजरत ने फरमाया, कोई बंदा जब क़यामत के दिन इस हालत में पेश होगा कि उसने कलिमा का इकरार किया होगा और इससे इसका मकसूद अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना होगी, तो अल्लाह ताला दोज़ख की आग को इस पर हराम कर देगा। सही बुखारी 6423। रसूल अल्लाह ने फरमाया, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे इस मोमिन बंदे का जिसकी मैं कोई अजीज चीज दुनिया से उठा लूं और वो इस पर सवाब की नीयत से सब्र कर ले, तो इसका बदला मेरे यहाँ जन्नत के सवा और कुछ नहीं। सही बुखारी 6424। नबी करीम ने फरमाया, सबसे बेहतर मेरा जमाना है, इसके बाद उन लोगों का जो उसके बाद होंगे, फिर जो उनके बाद होंगे, और उसके बाद ऐसे लोग पैदा होंगे जो किस्म से पहले गवाही देंगे, कभी गवाही से पहले किस्म खाएंगे। सही बुखारी 6429। नबी करीम ने फरमाया, नेक लोग एक के बाद दीगरे गुजर जाएंगे, इसके बाद जो कि भूसे या खजूर के कचरे की तरह कुछ लोग दुनिया में रह जाएंगे जिनकी अल्लाह पाक को कुछ जरा भी परवाह ना होगी। सही बुखारी 6434। नबी करीम ने फरमाया, तवंगरी ये नहीं है कि सामान ज्यादा हो, बल्कि अमीरी ये है कि दिल गनी हो। रसूल अल्लाह ने फरमाया, दीनार व दिरहम के बंदे, उम्दा रेशमी चादरों के बंदे, सिया कमली के बंदे तबाह हो गए कि अगर उन्हें दिया जाए तो वो खुश हो जाते हैं और अगर ना दिया जाए तो नाराज रहते हैं। सही बुखारी 6435। नबी करीम ने फरमाया कि अगर इंसान के पास माल की दो वादियां हों तो तीसरी का ख्वाहिशमंद होगा और इंसान का पेट मिट्टी के सवा और कोई चीज नहीं भर सकती, और अल्लाह इस शख्स की तौबा कबूल करता है जो दिल से सच्ची तौबा करता है। सही बुखारी 6436। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर इंसान के पास माल भीड़ बकरी की पूरी वादी हो तो वो चाहेगा कि उसे वैसी ही एक और मिल जाए, और इंसान की आंख मिट्टी के सवा और कोई चीज नहीं भर सकती, और जो अल्लाह से तौबा करता है वो इसकी तौबा कबूल करता है। सही बुखारी 6437। रसूल करीम ने फरमाया कि अगर इंसान के पास सोने की एक वादी हो तो वो चाहेगा कि दो हो जाएं, और उसका मुन कब्र की मिट्टी के सवा और कोई चीज नहीं भर सकती, और अल्लाह इसकी तौबा कबूल करता है जो तौबा करे। सही बुखारी 6439। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर मेरे पास अहद पहाड़ के बराबर भी सोना हो तो मुझे इसमें खुशी होगी कि 3 दिन भी मुझ पर इस हाल में न गुजरने पाई कि इसमें से मेरे पास कुछ भी बाकी बचे। अलबत्ता अगर किसी का कर्ज दूर करने के लिए कुछ रख छोड़ो तो ये और बात है। सही बुखारी 6445। नबी करीम ने कभी मेज पर खाना नहीं खाया यहां तक कि आपकी वफात हो गई, और ना वफात तक अपने कभी बारीक चपाती तनावुल फरमाए। सही बुखारी 6450। हजरत आयशा ने बयान किया कि नबी करीम की वफात हुई तो मेरे तो शाखाना में कोई गल्ला न था जो किसी जानदार के खाने के काबिल होता, सवा थोड़े से जो मेरे तो शाखाना में थे, मैं उनमें ही से खाती रही। आखिर उकता कर जब बहुत दिन हो गए तो मैंने उन्हें मापा तो वो खत्म हो गए। सही बुखारी 6451। आपके घर वालों को मदीना आने के बाद कभी 3 दिन तक बराबर गेहूं की रोटी खाने के लिए नहीं मिली, यहां तक कि हजरत की रूह कब्ज हो गई। सही बुखारी 6454। नबी करीम के घराना ने अगर कभी एक दिन में 2 मरतबा खाना खाया तो जरूर इसमें एक वक्त सिर्फ खजूरें होती थी। सही बुखारी 6455। नबी करीम का बिस्तर चमड़े का था और इसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। सही बुखारी 6456। रसूल अल्लाह ने दुआ की, ए अल्लाह, आले मोहम्मद को इतनी रोजी दे कि वो जिंदा रह सकें। सही बुखारी 6460। नबी करीम को सबसे ज्यादा पसंदीदा वो अमल था जिसको आदमी हमेशा करता रहे। सही बुखारी 6462। रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुमसे किसी शख्स को इसका अमल नजात नहीं दिला सकेगा। सहाबा ने अर्ज की, और आपको भी नहीं या रसूल अल्लाह? फरमाया, और मुझे भी नहीं, सवा उसके कि अल्लाह ताला मुझे अपनी रहमत के साया में ले ले। बस तुमको चाहिए कि दुरुस्ती के साथ अमल करो और मियाना रवि इख्तियार करो। सुबह और शाम, इसी तरह रात को जरा सा चल लिया करो और एतदाल के साथ चला करो, मंजिल मकसूद को पहुंच जाओगे। सही बुखारी 6463। रसूल अल्लाह ने फरमाया, दरमियानी चाल इख्तियार करो और बुलंद परवाजी ना करो और अमल करते रहो
तुम में से किसी का अमल उसे जन्नत में नहीं दाखिल कर सकेगा। मेरे नजदीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जिस पर हमेशगी की जाए, खा कम ही क्यों ना हो। सही बुखारी 6464। नबी करीम से पूछा गया, कौन सा अमल अल्लाह के नजदीक ज्यादा पसंदीदा है? फरमाया कि जिस पर हमेशगी की जाए, खा वो थोड़ा ही हो, और फरमाया नेक काम करने में इतनी ही तकलीफ उठाओ जितनी ताकत है जो हमेशा निभ सके। सही बुखारी 6465। रसूल अल्लाह ने मेरा शाना पकड़कर फरमाया, दुनिया में इस तरह हो जाए जैसे तो मुसाफिर रास्ता चलने वाला हो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाया करते थे, शाम हो जाए तो सुबह के मुंतजिर ना रहूं, और सुबह के वक्त शाम के मुंतजिर ना रहूं। अपनी सेहत को मर्ज से पहले गनीमत जानो और जिंदगी को मौत से पहले। सही बुखारी 6416। मैंने रसूल अल्लाह से सुना, अपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने रहमत को जिस दिन बनाया तो इसके 100 हिस्से किए और अपने पास उनमें से 99 रखे। इसके बाद तमाम मखलूक के लिए सिर्फ एक हिस्सा रहमत का भेजा। बस अगर काफिर को वो तमाम रहम मालूम हो जाए जो अल्लाह के पास है तो वो जन्नत से नाउमीद ना हो, और अगर मोमिन को वो तमाम अजाब मालूम हो जाए जो अल्लाह के पास हैं तो दोज़ख से कभी बेखौफ ना हो। सही बुखारी 6469। नबी करीम इतनी नमाज पढ़ते कि आपके कदमों में वरम आ जाता। कहा कि आपके कदम फूल जाते। हजरत से अर्ज की जाती कि आप तो बख्शे हुए हैं। हजरत फरमाते हैं कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? सही बुखारी 6471। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 लोग बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो झाड़ फूंक नहीं कराते, ना शगुन लेते हैं, और अपने रब ही पर भरोसा रखते हैं। सही बुखारी 6472। हजरत ने फरमाया, बंदा एक बात जबान से निकालता है और उसके मुतालिक सोचता नहीं कि कितनी कुफ्र और बेअदबी की बात है, जिसकी वजह से वो दोज़ख के गले में इतनी दूर गिर पड़ता है जितना पिछ हमसे पूरब दूर है। सही बुखारी 6477। नबी करीम ने फरमाया, बंदा अल्लाह की रजामंदी के लिए एक बात जबान से निकालता है, इसे वो कोई अहमियत भी नहीं देता, मगर इसी की वजह से अल्लाह इसके दर्जे बुलंद कर देता है। और एक दूसरा बंदा एक ऐसा कलिमा जबान से निकालता है जो अल्लाह की नाराजगी का बाइस होता है, इसे वो कोई अहमियत नहीं देता, लेकिन इसकी वजह से वो जहन्नम में चला जाता है। सही बुखारी 6478। नबी करीम ने फरमाया, पिछली उम्मतों में एक शख्स जिसे अपने बुरे अमलों का डर था, उसने अपने घर वालों से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा लाशा रेजा रेजा करके गर्म दिन में उठा के दरिया में डाल देना। इसके घर वालों ने इसके साथ ऐसा ही किया। फिर अल्लाह ताला ने इसे जमा किया और उससे पूछा कि ये जो तुमने किया उसकी वजह क्या है? इस शख्स ने कहा कि परवरदिगार, मुझे इस पर सिर्फ तेरे खौफ ने आमादा किया, चुनांचे अल्लाह ताला ने इसकी मग़फ़िरत फरमा दी। सही बुखारी 6480। नबी करीम ने फरमाया, मुसलमान वो है जो मुसलमानों को अपनी ज़बान और हाथ से तकलीफ पहुंचने से महफूज रखे, और मुहाजिर वो है जो उन चीज़ों से रुक जाए जिसे अल्लाह ने मना किया है। सही बुखारी 6484। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम्हें वो मालूम होता जो मैं जानता हूँ तो तुम हंसते कम और रोते ज्यादा। सही बुखारी 6485। नबी करीम ने फरमाया, अगर तुम्हें वो मालूम होता जो मैं जानता हूँ तो तुम हंसते कम और रोते ज्यादा। सही बुखारी 6486। रसूल करीम ने फरमाया, दोज़ख ख्वाहिशात नफसानी से ढक दी गई है और जन्नत मुश्किलात और दुश्वारियों से ढकी हुई है। सही बुखारी 6487। नबी करीम ने फरमाया, जन्नत तुम्हारे जूते के तस्मे से भी ज्यादा तुमसे करीब है, और इसी तरह दोज़ख भी। सही बुखारी 6488। नबी करीम ने फरमाया, सबसे सच्चा शेर जिसे शायर ने कहा है यह है, हाँ अल्लाह के सवा तमाम चीजें बेबुनियाद हैं। सही बुखारी 6489। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वअनहर इन्न शानिअक हुवल अब्तर। नबी करीम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स किसी ऐसे आदमी को देखे जो माल और शक्ल व सूरत में इससे बढ़कर है, तो इस वक्त उसे ऐसे शख्स का ध्यान करना चाहिए जो उससे कम दर्जा का। सही बुखारी 6490। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब अमानत ज़ाय की जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। पूछा, या रसूल अल्लाह, अमानत किस तरह ज़ाय की जाएगी? फरमाया, जब काम नाअहल लोगों के सुपुर्द कर दिए जाएं
तो क़यामत का इंतज़ार करो। सही बुखारी 6496। आ हज़रत ने फरमाया कि लोगों की मिसाल ऊँटों की सी है, सौ में भी एक तेज़ सवारी के काबिल नहीं मिलता। सही बुखारी 6498। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैं और क़यामत इतने नज़दीक नज़दीक भेजे गए हैं। और हज़रत ने अपनी 2 उंगलियों के इशारा से इस नज़दीकी को बताया, फिर इन दोनों को फैलाया। सही बुखारी 6503। नबी करीम ने फरमाया, मैं और क़यामत इन दोनों उंगलियों की तरह नज़दीक नज़दीक भेजे गए हैं। सही बुखारी 6504। और उनसे नबी करीम ने फरमाया, मैं और क़यामत इन दो की तरह भेजे गए हैं। आपकी मुराद 2 उंगलियों से थी। सही बुखारी 6505। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से मिलने को पसंद करता है, अल्लाह भी इससे मिलने को पसंद करता है, और जो शख्स अल्लाह से मिलने को नापसंद करता है, अल्लाह भी इससे मिलने को नापसंद करता है। सही बुखारी 6508। नबी करीम ने फरमाया, सबसे पहले जिस चीज का फैसला लोगों के दरमियान होगा वो नाहक खून के बदला का होगा। सही बुखारी 6533। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैयत के साथ 3 चीजें चलती हैं, 2 तो वापस आ जाती हैं, सिर्फ एक काम उसके साथ रह जाता है। इसके साथ इसके घर वाले, इसका माल और इसका अमल चलता है। इसके घर वाले और माल तो वापस आ जाते हैं और उसका अमल इसके साथ बाकी रह जाता है। सही बुखारी 6514। रसूल करीम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मरता है तो सुबह और शाम जब तक वो बरज़ख में है, इसके रहने की जगह इसे हर रोज दिखाई जाती है, या दोज़ख हो या जन्नत, और कहा जाता है कि ये तेरे रहने की जगह है यहाँ तक कि तो उठाया जाए, यानी क़यामत के दिन तक। सही बुखारी 6515। नबी करीम ने फरमाया, जो लोग मर गए उनको बुरा ना कहो, क्योंकि जो कुछ उन्होंने आगे भेजा था उसके पास वो खुद पहुंच चुके हैं। उन्होंने बुरे भले जो भी अमल किए थे वैसा बदला पा लिया। सही बुखारी 6516। नबी करीम ने फरमाया कि बेहोशी के वक्त तमाम लोग बेहोश हो जाएंगे और सबसे पहले उठने वाला मैं हूँगा। इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम अर्श इलाही का कोना थामे होंगे। अब मैं नहीं जानता कि वो बेहोश भी होंगे या नहीं। सही बुखारी 6518। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ताला ज़मीन को अपनी मुट्ठी में ले लेगा और आसमानों को अपने दाएं हाथ में लपेट लेगा, फिर फरमाएगा कि अब मैं हूँ बादशाह, आज ज़मीन के बादशाह कहाँ गए। सही बुखारी 6519। हज़रत ने फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों का हश्र सफ़ेद और सुर्खी आमेज़ ज़मीन पर होगा, जैसे मैदा की रोटी साफ़ और सफ़ेद होती है। इस ज़मीन पर किसी चीज़ का कोई निशान न होगा। सही बुखारी 6521। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इस आदमी के उज़्र के सिलसिले में हुज्जत तमाम कर दी, जिसकी मौत को मुअख्खर किया यहाँ तक कि वो 60 साल की उम्र को पहुँच गया। सही बुखारी 6419। नबी करीम ने फरमाया, काफिर के दोनों शानों के दरमियान तेज चलने वाले के लिए 3 दिन की मुसाफत का फासला होगा। सही बुखारी 6551। एक सहाबी ने कहा, ये अल्लाह के नबी, क़यामत में काफिरों को उनके चेहरे के बिल किस तरह हश्र किया जाएगा? हज़रत ने फरमाया कि वो ज़ात जिसने उन्हें दुनिया में 2 पांव पर चलाया, उसे इस पर कुदरत नहीं है कि क़यामत के दिन उन्हें चेहरे के बिल चला दे। कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ज़रूर है, हमारे रब की इज़्ज़त की किस्म, बेशक वो मुन्ह के बिल चला सकता है। सही बुखारी 6523। रसूल अल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन लोग पसीने में शराबूर हो जाएंगे और हालत ये हो जाएगी कि तुम में से हर किसी का पसीना ज़मीन पर 70 हाथ तक फैल जाएगा और मुंह तक पहुंचकर कानों को छूने लगेगा। सही बुखारी 6532। नबी करीम ने फरमाया, जन्नत में मेरी उम्मत के 70,000 आ 7 लाख रावी को उनमें से किसी एक तादाद में शक था आदमी इस तरह दाखिल होंगे कि बाज को पकड़े हुए होंगे, और इस तरह इनमें के अगले पिछले सब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह रोशन होंगे। सही बुखारी 6543। नबी करीम ने फरमाया, जब अहल जन्नत जन्नत में और अहल जहन्नम जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे तो एक आवाज देने वाला उनके दरमियान खड़ा होकर पुकारेगा कि ए जहन्नम वाल, अब तुम्हें मौत नहीं आएगी, और ए जन्नत वाल, तुम्हें भी मौत नहीं आएगी बल्कि हमेशा यही रहना होगा। सही बुखारी 6544। नबी करीम ने फरमाया, अहल जन्नत से कहा जाएगा कि ए अहल जन्नत, हमेशा तुम्हें यही रहना है, तुम्हें मौत नहीं आएगी। और अहल दोज़ख से कहा जाएगा कि ए दोज़ख वाल,
हमेशा तुमको यही रहना है, तुमको मौत नहीं आएगी। सही बुखारी 6545। नबी करीम ने बयान किया कि मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो वहां रहने वाले अक्सर गरीब लोग थे, और मैंने जहन्नम में झांक कर देखा शब मेराज में तो वहां औरतें बहुत थीं। सही बुखारी 6546। नबी करीम ने फरमाया, मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो वहां अक्सर दाखिल होने वाले मोहताज लोग थे और मेहनत मजदूरी करने वाले थे, और मालदार लोग एक तरफ रोके गए हैं, उनका हिसाब लेने के लिए बाकी है, और जो लोग दोज़खी थे वो तो दोज़ख के लिए भेज दिए गए। और मैंने जहन्नम के दरवाजे पर खड़े होकर देखा तो इसमें अक्सर दाखिल होने वाली औरतें थीं। सही बुखारी 6547। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब अहल जन्नत जन्नत में चले जाएंगे और अहल दोज़ख में चले जाएंगे तो मौत को लाया जाएगा और इसे जन्नत और दोज़ख के दरमियान रखकर ज़ब्ह कर दिया जाएगा। फिर एक आवाज देने वाला आवाज देगा कि ए जन्नत वाल, तुम्हें अब मौत नहीं आएगी, और ए दोज़ख वाल, तुम्हें भी अब मौत नहीं आएगी। इस बात से जन्नती और ज्यादा खुश हो जाएंगे और जहन्नुमी और ज्यादा गमगीन हो जाएंगे। सही बुखारी 6548। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जन्नत में एक दरख्त है जिसके साया में सवार 100 साल तक चलने के बाद भी इसे तय नहीं कर सकेगा। सही बुखारी 6552। नबी करीम ने फरमाया, जन्नत में एक दरख्त होगा जिसके साया में उम्दा और तेज रफ्तार घोड़े पर सवार शख्स 100 साल तक चलता रहेगा और फिर भी इसे तय न कर सकेगा। सही बुखारी 6553। नबी करीम ने फरमाया, जन्नत वाले अपने ऊपर के दर्जों के बालाखानों को इस तरह देखेंगे जैसे तुम आसमान में सितारों को देखते हो। सही बुखारी 6555। और इसमें वो इस लफ्ज़ का इजाफा करते थे कि जैसे तुम मशरिकी और मगरिबी किनारों में डूबते सितारों को देखते हो। सही बुखारी 6556। नबी करीम ने फरमाया, एक जमात जहन्नम से निकलेगी इसके बाद के जहन्नम की आग ने उनको जला डाला होगा और फिर वो जन्नत में दाखिल होंगे। अहल जन्नत इनको जहन्नमियन के नाम से याद करेंगे। सही बुखारी 6559। अपने फरमाया कि क़यामत के दिन अजाब के एतबार से सबसे कम वो शख्स होगा जिसके दोनों कदमों के नीचे आग का अंगारा रखा जाएगा और उसकी वजह से इसका दिमाग खोल रहा होगा। सही बुखारी 6561। हज़रत ने फरमाया कि क़यामत के दिन दोज़खियों में अजाब के एतबार से सबसे हल्का अजाब पाने वाला वो शख्स होगा जिसके दोनों पैरों के नीचे 2 अंगारे रख दिए जाएंगे जिनकी वजह से इसका दिमाग खोल रहा होगा जिस तरह हांडी और केतली जोश खाती है। सही बुखारी 6562। नबी करीम ने जहन्नम का जिक्र किया और रुए मुबारक फेर लिया और इससे पनाह मांगी। फिर जहन्नम का जिक्र किया और रुए मुबारक फेर लिया और इससे पनाह मांगी। इसके बाद फरमाया कि दोज़ख से बच्चों सदका देकर खा खजूर के एक टुकड़े ही के जरिया हो सके, जिसे ये भी ना मिले से चाहिए कि अच्छी बात कहकर। सही बुखारी 6563। हज़रत के सामने आपके चचा अबू तालिब का जिक्र किया गया था तो आपने फरमाया, मुमकिन है क़यामत के दिन मेरी शफाअत उनके काम आ जाए और उन्हें जहन्नम में टखनों तक रखा जाएगा जिससे उनका भेजा खोलता रहेगा। सही बुखारी 6566। नबी करीम ने फरमाया, एक जमात जहन्नम से हज़रत मोहम्मद की शफाअत की वजह से निकलेगी और जन्नत में दाखिल होगी जिनको जहन्नमिया के नाम से पुकारा जाएगा। सही बुखारी 6566। अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए एक सुबह एक शाम सफर करना दुनिया और जो कुछ इसमें है से बढ़कर है, और जन्नत में तुम्हारी एक कमान के बराबर जगह, एक कदम के फासले के बराबर जगह दुनिया और जो कुछ इसमें है से बेहतर है। और अगर जन्नत की औरतों में से कोई औरत रुए जमीन की तरफ झांक कर देख ले तो आसमान से लेकर जमीन तक मुनव्वर कर दे और उन तमाम को खुशबू से भर दे और इसका दोपट्टा दुनिया व माफिया से बढ़कर है। सही बुखारी 6568। नबी करीम ने फरमाया, जन्नत में जो भी दाखिल होगा उसे इसका जहन्नम का ठिकाना भी दिखाया जाएगा कि अगर नाफरमानी की होती तो वहां ऐसे जगह मिलती ताकि वो और ज्यादा शुक्र करे, और जो भी जहन्नम में दाखिल होगा उसे इसका जन्नत का ठिकाना भी दिखाया जाएगा कि अगर अच्छे अमल किए होते तो वहां जगह मिलती ताकि इसके लिए हसरत व अफसोस का बाइस हो। सही बुखारी 6569। और उनसे नबी करीम ने कि मैं तुमसे पहले ही हौज पर मौजूद रहूंगा। सही बुखारी 6575।
नबी करीम ने फरमाया, तुम्हारे सामने ही मेरा हौज होगा, वो इतना बड़ा है जितना जरबाक और अजरहा के दरमियान फासला है। सही बुखारी 6577। नबी करीम ने फरमाया, मेरे हौज की लंबाई इतनी होगी जितनी इला और यमन और शहर सना के दरमियान की लंबाई है, और वहां इतनी बड़ी तादाद में प्याले होंगे जितनी आसमान के सितारों की तादाद है। सही बुखारी 6580। नबी करीम ने फरमाया, मेरा हौज 1 महीने की मुसाफत के बराबर होगा। इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और उसकी खुशबू मुश्क से ज्यादा अच्छी होगी, और उसके कूजे आसमान के सितारों की तादाद के बराबर होंगे। जो शख्स इसमें से एक मर्तबा पी लेगा वो फिर कभी भी मैदान महशर में प्यासा न होगा। सही बुखारी 6579। नबी करीम ने बयान किया कि मैं जन्नत में चल रहा था कि मैं एक नहर पर पहुंचा। इसके दोनों किनारों पर खोलदार मोतियों के गुंबद बने हुए थे। मैंने पूछा, जिब्रील, ये क्या है? उन्होंने कहा, ये कौसर है जो आपके रब ने आपको दिया है। मैंने देखा कि इसकी खुशबू या मिट्टी तेज मुश्क जैसी थी। रावी हदबा को शक था। सही बुखारी 6581। नबी करीम ने हौज का जिक्र किया और फरमाया कि वो इतना बड़ा है जितनी मदीना और सना के दरमियान दूरी है। सही बुखारी 6591। नबी करीम ने फरमाया, मेरे कुछ साथी हौज पर मेरे सामने लाए जाएंगे और मैं उन्हें पहचान लूंगा, लेकिन फिर वो मेरे सामने से हटा दिए जाएंगे। मैं इस पर कहूंगा कि ये तो मेरे साथी हैं, लेकिन मुझसे कहा जाएगा कि आपको मालूम नहीं कि उन्होंने आपके बाद क्या नई चीजें ईजाद कर ली थीं। सही बुखारी 6582। एक साहिब ने यानी खुद उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या जन्नत के लोग जहन्नुमियों में से पहचाने जा चुके हैं? हजरत ने फरमाया, हाँ। उन्होंने कहा कि फिर अमल करने वाले क्यों अमल करें? हजरत ने फरमाया कि हर शख्स वही अमल करता है जिसके लिए वो पैदा किया गया है या जिसके लिए उसे सहूलत दी गई है। सही बुखारी 6596। उन्होंने नबी करीम का ये इरशाद सुना, इसमें इतना ज्यादा है कि आपका हौज इतना लंबा होगा जितनी सना और मदीना के दरमियान दूरी है। इस पर हजरत मस्तविर ने कहा, क्या आपने बर्तनों वाली रवायत नहीं सुनी? उन्होंने कहा कि नहीं। मस्तविर ने कहा कि इसमें बर्तन पीने के इस तरह नजर आएंगे जिस तरह आसमान में सितारे नजर आते हैं। सही बुखारी 6592। नबी करीम से मुशरिकीन की औलाद के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि अल्लाह को खूब मालूम है कि वो बड़े होकर क्या अमल करते। सही बुखारी 6597। रसूल अल्लाह से मुशरिकीन की औलाद के मुतालिक पूछा गया तो आपने फरमाया कि अल्लाह खूब जानता है कि वो क्या अमल करते। सही बुखारी 6598। रसूल अल्लाह ने फरमाया, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो फितरत पर ना पैदा होता हो, लेकिन इसके वालिदैन इसे यहूदी या नसरानी बना देते हैं, जैसा कि तुम्हारे जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं। क्या उनमें कोई कुन कटा पैदा होता है? वो तो तुम ही इसका कान काट देते हो। सही बुखारी 6599। सहाबा ने अर्ज किया, फिर रसूल अल्लाह, इस बच्चे के मुतालिक क्या ख्याल है जो बचपन ही में मर गया हो? आपने फरमाया कि अल्लाह खूब जानता है कि वो बड़ा होकर क्या अमल करता। सही बुखारी 6600। रसूल अल्लाह ने फरमाया, कोई औरत अपनी किसी दीनी बहन की तलाक का मुतालबा शौहर से न करे कि इसके घर को अपने ही लिए खास कर लेना चाहे, बल्कि इसे निकाह दूसरी औरत की मौजूदगी में भी कर लेना चाहिए, क्योंकि इसे इतना ही मिलेगा जितना इसके मुकद्दर में होगा। सही बुखारी 6601। हजरत की साहबजादियों में से एक का बुलावा आया। हजरत की खिदमत में साद, इब्बी बिन काब और माज रजी अल्लाह अन्हुम मौजूद थे। बुलाने वाले ने आकर कहा कि उनका बच्चा हजरत का नवासा नज़ा की हालत में है। हजरत ने कहला भेजा कि अल्लाह ही का है जो वो लेता है, इसलिए वो सब्र करें और अल्लाह से अजर की उम्मीद रखें। सही बुखारी 6602। नबी करीम ने हमें एक खुतबा दिया और क़यामत तक की कोई दीनी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जिसका बयान न किया हो। जिसे याद रखना था उसने याद रखा और जिसे भूलना था वो भूल गया। जब मैं इनमें की कोई चीज़ देखता हूँ जिसे मैं भूल चुका हूँ तो इस तरह इसे पहचान लेता हूँ जिस तरह वो शख्स जिसकी कोई चीज़ गुम हो गई हो कि जब वो इसे देखता है तो फौरन पहचान लेता है। सही बुखारी 6604।
नबी करीम ने नजर मारने से मना किया था और फरमाया था कि नजर किसी चीज को नहीं लूटती, नजर सिर्फ बखील के दिल से पैसा निकालती है। सही बुखारी 6608। Subscribe the Islamic Ahadith channel, like and comments on Ahadith. हदीस की मालूमात के लिए इस्लामिक हदीस चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक और कमेंट करें। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह से पनाह मांगा करो आजमाइश की मशक्कत, बदबख्ती की पस्ती, बुरे खात्मे और दुश्मन के हंसने से। अक्सर नबी करीम कसम खाया करते थे कि नहीं, दिलों को फेरने वाले की किस्म। सही बुखारी 6617। नबी करीम ने फरमाया कि हम आखिरी उम्मत हैं और क़यामत के दिन जन्नत में सबसे पहले दाखिल होंगे। सही बुखारी 6624। फिर हजरत ने फरमाया कि वल्लाह बसा औकात अपने घर वालों के मामला में तुम्हारा अपनी कस्मों पर इसरार करते रहना अल्लाह के नज़दीक इससे ज्यादा गुनाह की बात होती है कि कस्म तोड़ कर इसका वो कफ़ारा अदा कर दिया जाए जो अल्लाह ताला ने इस पर फर्ज किया है। सही बुखारी 6625। रसूल अल्लाह ने फरमाया, वो शख्स जो अपने घर वालों के मामला में किस्म पर ओरा रहता है वो इससे बड़ा गुनाह करता है कि इस किस्म का कफ़ारा अदा कर दे। सही बुखारी 6626। नबी करीम का किस्म बस इतनी थी कि नहीं, दिलों के फेरने वाले अल्लाह की किस्म। सही बुखारी 6628। नबी करीम ने फरमाया, जब कैसर हलाक हो जाएगा तो फिर इसके बाद कोई कैसर नहीं पैदा होगा, और जब कसर हलाक हो जाएगा तो इसके बाद कोई कसर नहीं पैदा होगा, और इस जात की किस्म जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम उनके खजाने अल्लाह के रास्ता में खर्च करोगे। सही बुखारी 6629। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जब किसरा बादशाह ईरान हलाक हो जाएगा तो इसके बाद कोई किसरा नहीं पैदा होगा, और जब कैसर बादशाह रोम हलाक हो जाएगा तो इसके बाद कोई कैसर नहीं पैदा होगा, और इस जात की किस्म जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम उनके खजाने अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे। सही बुखारी 6630। नबी करीम ने फरमाया, ए मत मोहम्मद, वल्लाह अगर तुम वो जानते जो मैं जानता हूं तो ज्यादा रोते और कम हंसते। सही बुखारी 6631। रसूल अल्लाह ने फरमाया, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम भी आखिरत की वो मुश्किलात जानते जो मैं जानता हूं तो तुम ज्यादा रोते और कम हंसते। सही बुखारी 6637। नबी करीम फरमा रहे थे कि रुकू और सजदा पूरे तौर पर अदा किया करो। अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं अपनी कमर के पीछे से तुमको देख लेता हूं जब रुकू और सजदा करते हो। सही बुखारी 6644। अंसारी खातून नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुईं, उनके साथ उनके बच्चे भी थे। हज़रत ने उनसे फरमाया कि इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम लोग भी मुझे तमाम लोगों में सबसे ज्यादा अजीज हो। ये अल्फाज हज़रत ने 3 मरतबा फरमाए। सही बुखारी 6645। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अपने बाप दादों की किस्म न खाओ। सही बुखारी 6648।